different video as the title already conveys it, but it is very close to my heart. And believe me, the idea of shooting this video and the wish of uploading this video on YouTube was from last 2 to 3 years since I've watched the dream of getting into DU. So let's start by introducing myself. My name is Jasnaaz Kaur and I am currently pursuing Bachelor of Commerce Honours degree from Shri Guru Gobind Singh College of Commerce, University of Delhi. And I am currently in my first semester. So I have recently shifted to Delhi 4 months back and my first semester is already completed. So let's move further. तो सबसे पहले तो मैं हिंदी लैंग्वेज पे आ जाती हूँ बिकॉज हिंदी से ज़्यादा बंदा ना कनेक्ट कर लेता है. So this will be a very informal video as I am just sharing my experiences and everything you need to know, and there are various reasons of me thinking to create this video or putting this video, and that's why I request you, if you like this video, don't forget to share it with your friends as it might be very helpful if they have also watched the dream of getting into DU. So let's start. First of all, this video will be covering a lot of topics like why DU, life in Delhi, as I reside in Ludhiana, so shifting to Delhi was a very big challenge for me as well as my family. So it includes why DU, moving towards, what are the difference between the life here and life there, being a metropolitan city, and various reasons. So every parameter will be covered in the further video. So I want you to watch this video till the end and do provide your feedback in the comment section. So let's start. First of all, when I talk about DU, that is University of Delhi. What is University of Delhi? University of Delhi is a central institution that grants all kinds of study related courses, that are the professional courses, professional degrees to their students, and only elite students that are good in studies and good in grades. First of all, interrupting in between, I would like to tell you the reason why I wanted to convey everything related to DU, because guys, when I was thinking about getting admission into DU, I was very keen towards knowing everything. Since from my family, I was the first one who got admission into DU because my family had a numerous number of non-medical students. I'm the youngest one in my family, and everyone in my family is now an engineer working in big MNCs. So everyone was like very keen that you want to take commerce, okay, so do any degree and start doing CA, start doing CS, start doing CMA, we can give you guidance, we can this, right? So लोगों का परसेप्शन शुरू से ही ये था कि नॉन मेडिकल लेते हैं तो इजी सक्सेस होता है एंड कॉमर्स डिग्री लेते हैं तो बहुत स्लो सक्सेस होता है, जो कि एक हद तक सच भी है, क्योंकि मैं इसको शुगर कोट नहीं करना चाहूँगी, एक हद तक सच भी है. लेकिन कॉमर्स में सक्सेस नहीं है इज़ अ वेरी बिग मिथ दैट नीड्स टू बी ब्रेक. Students nowadays think that non-medical is the only degree that can give you success because the ultimate motive of every person out there is to earn good money and support their families. But every child has a different mindset. Every child has its own way of thinking, and every child, believe me, including me, cannot move with maths, physics or chemistry. So I am also one of those. मैं मैथ से बहुत दूर भागती हूँ, मेरे से मैथ्स नहीं होता, मेरे से फिजिक्स नहीं हो सकता, मुझे पता है. तो मैं करना चाहूँ तो हर बच्चा हर चीज़ कर सकता है, लेकिन आई नो मी कि मैं अगर मैथ्स ले भी लेती, मैं नॉन मेडिकल कर भी लेती, तो मुझे पता था कि मैं खुश नहीं रह पाऊँगी. मेरे को अपनी लाइफ में जब मैथ्स को इतना ज़्यादा इंकलकेट करके हर चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे पता था आई विल नॉट बी एबल टू बी हैप्पी. सो आई चूज इन कॉमर्स, राइट. कॉमर्स में मुझे पता था कि आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स में, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. लेकिन जब मैं आगे चलती हूँ, जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब मैं आपको आगे डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी. सो द थिंग इज कि ये वीडियो बनाने का द ओनली मोटिव वॉज, देयर वॉज नो सच वीडियो ऑन द यूट्यूब दैट वॉज कन्वेइंग एवरी रियलिटी, एवरी टिट एंड एवरी बिट ऑफ द लाइफ इन DU and what is DU basically, why the students should think about moving towards DU and leave their local colleges or universities. So when I start with this video, I want you all to be very well aware about what you want to do in your life. ठीक है. So सबसे पहले why DU. देखो, I will share my journey. I hope you will be able to relate with it. But on the other hand, it might be very different for you because everyone's life is not very same. But इससे आपको एक pathway ज़रूर मिल जाएगा कि what you want to do in your life and how you can pursue if you are having a commerce degree. So let's start. So let's begin with the first parameter, that is why DU.
DU क्यों? पूरी वीडियो में DU रेफर्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एज यू ऑलरेडी नो, शॉर्ट में DU। देखो, बात शुरू होती है, मैं आपको अपनी जर्नी थोड़ी शॉर्ट में बताती हूँ। बात शुरू होती है +1 में। 10th तक आई वॉज नॉट नोइंग मुझे क्या करना है। 10th तक आई वॉज अ टॉपर, ठीक है, अभी भी हूँ, अभी भी अच्छे ग्रेड्स ले लेती हूँ, बट आई वॉज लाइक कि 96% स्कोरर एंड एवरीथिंग। तो 10th से आई वॉज लाइक कि क्या करना है, मैथ्स हो नहीं सकती, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी मैथ्स आ जाता है, क्योंकि 9-10 में ना बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमको। सो इट्स लाइक कि मैथ्स तो हो नहीं सकती, मैथ्स नहीं होती तो फिजिक्स भी नहीं हो पाएगी, तो नॉन मेडिकल तो नहीं लेना। आर्ट्स तो होता ही छोटा डिग्री है, नो ऑफेंस, बट आर्ट्स होती है ऐसी। तो हमारी फैमिली में जो पर्सपेक्टिव बना होता है, तो आर्ट्स तो पहले से ही वो था कि मेरे को IAS IPS में नहीं जाना, तो मुझे क्यों लेनी है। तो आर्ट्स भी कैंसिल आउट हो गया, मास मीडिया में इंटरेस्ट नहीं है, बचा गया कॉमर्स ले लो, ठीक है। इंटरेस्ट शुरू से था। मैं आपको अपने इंटरेस्ट एरियाज बताती हूँ। छोटे होते से आई वॉज अ पर्सन हु ऑलवेज वांटेड टू डू सम पेपर वर्क में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लाइक अलग अलग एंट्रीज करना, पेपर फाइल्स का काम करना, कंप्यूटर्स पे काम करना। तो आई वॉज नोइंग कि अगर मैं अकाउंटिंग में जाती हूँ या फिर मैं बिजनेस वाली चीज़ों में जाती हूँ तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सो आई चूज़न कॉमर्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया, आई चूज़न कॉमर्स, एंड आगे बढ़ते बढ़ते वह मेरी +1 स्टार्ट हुई, आई वॉज नॉट नोइंग मुझे क्या करना है। पता भी नहीं था कौन से कॉलेज में क्या होता है। पता होता था BCom डिग्री होती है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर BCom, तो मुझे पता था कि एक BCom डिग्री होती है या फिर CA होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम चलते हैं आगे। +1 स्टार्ट होती है, धीरे धीरे व्हेन आई गॉट टू माई कोचिंग्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स होते थे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटिंग। तो जब मैं जाती थी ट्यूशन्स, तो वहाँ पे बात शुरू होती है मेरे इकोनॉमिक्स के सर पे। माई सर वॉज विपुल सर, विपुल वर्शिप ट्यूटोरियल्स इन लुधियाना। अगर कोई लुधियाना का स्टूडेंट सुन रहा है तो उसको ज़रूर पता होगा। तो दैट पर्सन, ही वॉज द वन हु मेड मी रियलाइज कि लाइफ को आगे कैसे डील करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, एंड लाइफ को कैसे अपनी नज़रों से देखना है एंड कुछ बन कर दिखाना है। लुधियाना में रहकर क्या होगा, बाहर जाकर क्या होगा। बाहर डजंट मीन कैनेडा, ही वॉज अगेंस्ट कैनेडा, बट आगे करना क्या है। तो वहाँ से एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बीइंग अ 17-year-old किड, इतनी नॉलेज नहीं थी, पूरी तरह ट्यूशन टीचर्स पर रिलाई करते थे और नॉर्मल करिकुलम की पढ़ाई करते थे। बढ़ते हैं आगे, आ जाती है एक न्यू चीज़, दैट इज CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जस्ट लाइक JEE, NTA कंडक्ट करता था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करती थी। एंड हमें कुछ नहीं पता था CUET के बारे में, हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि एक ना DU करके चीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड अगर एडमिशन लेनी है तो CUET देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, DU में एडमिशन होती थी +2 के मार्क्स के बेसिस पे, दैट वाज योर बोर्ड स्कोर, बोर्ड्स परसेंटेज। जहाँ पे एडमिशन होता था बड़े कॉलेजेस में 99.8, 99.6, 99.2 एंड एडमिशन क्लोज, ऐसे कट ऑफ जाती थी। तो लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि हर बार बोर्ड का पेपर अच्छा जाए या सिर्फ एक छोटे से सब्जेक्ट की वजह से आपके बोर्ड की परसेंटेज खराब हो जाए तो आप DU में जाने से रह जाते थे। सो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए CUET को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, जिससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा उसके किसी भी कोर्स में, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स यू टेक इन योर टेस्ट। एक बहुत ही इनफैक्ट पेपर है, लेकिन मुश्किल पेपर है। आपके करिकुलम के ही सब्जेक्ट्स का एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, आपके करिकुलम के सब्जेक्ट्स का ही पेपर लिया जाता है। जैसे मैंने अपने टाइम पे, मेरे को बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom ऑनर्स करनी थी, मेरे को BCom प्रोग्राम भी नहीं करना था, वहाँ पे BCom प्रोग्राम भी मिलता है, BCom ऑनर्स भी मिलता है। मुझे ऑनर्स करनी थी, तो मेरे पास सब्जेक्ट सेम ही थे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश एंड मैथ्स। ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको पेपर्स देने पड़ते थे। आई गेव अ टोटल ऑफ 6 पेपर्स अंडर CUET, एंड BCom ऑनर्स के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ को देखा जाता था, एंड इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट स्कोर को देखा जाता था, एंड उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती थी हर कॉलेज की, एंड आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था इन योर पर्टिकुलर डिग्री। अगर आपकी कट ऑफ BCom प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होती तो आपको BCom प्रोग्राम मिल जाता था, लेकिन एट दैट पॉइंट यू नीड टू बी वेरी कीन टूवर्ड्स कि आपको कौन सी डिग्री करनी है। ये नहीं करना कि मेरे को हर डिग्री में, किसी भी डिग्री में मिल जाए, बस DU में जाना है, क्योंकि उसके अंदर आप कह लो BA ऑनर्स भी होती है इन हिस्ट्री, ठीक है। सो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ कोर्सेज दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर्स, अब आउट ऑफ देम BCom ऑनर्स इज एट द टॉप। तो आपके मन में वो होना चाहिए कि हाँ, अगर ये कोर्स मिलेगा तो हमने DU में जाना है, अदरवाइज हमने DU में नहीं जाना। सो एज सून एज आई बिगिन फॉरवर्ड, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, जैसे जैसे +1 जाती है धीरे धीरे पता चलता है कि CUET देना पड़ेगा, DU क्या है भाई, DU तो ये चीज़ है, DU तो ये चीज़ है, राइट। मन में आ जाता है भाई जाऊँगी तो DU में जाऊँगी, अदरवाइज DU के बिना कहीं भी नहीं पढ़ूंगी। सो सॉरी, जैसे हम आगे गए
पता चलता है कि डी में क्या क्या होता है, तो मैंने अपने मन में ले लिया कि हाँ पढ़ूंगी तो डी में पढ़ूंगी, करूँगी तो बीकॉम ऑनर्स करूँगी, बीकॉम प्रोग्राम भी नहीं करूँगी। मेरे आ गई बात एम करने की। वेरी इंपॉर्टेंट टू एम वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। एम क्यों करना है डी में ऐसा क्या है वो सब आपको आगे पता लगेगा, लेकिन एम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ ना एक चीज़ और बता देती हूँ, व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू आर लिविंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, यू गेट टू नो कि अकेले एम करने से आपके सपने पूरे नहीं होते। दे ऑल रिक्वायर योर गॉड्स प्रेजेंस एज वेल एज योर पेरेंट्स प्रेजेंस एंड पेरेंट्स सेटिस्फैक्शन। सो कमिंग टूवर्ड्स पेरेंट्स, घर पे शोर डाल दिया, पढ़ दूंगी तो डी में पढ़ूंगी। किसी को कुछ नहीं पता था डी में क्या होता है, किसके थ्रू एडमिशन होता है, सीयूटी क्या होता है ये भी नहीं पता था, बिकॉज मेरी फैमिली में सब नॉन मेडिकल वाले थे। मेरा रियल ब्रदर इज ऑल्सो एन मैकेनिकल इंजीनियर, तो सब कुछ नॉन मेडिकल की सारी नॉलेज मिल जाएगी, कॉमर्स हमें कुछ नहीं पता। चलते हैं आगे, हम आ जाते हैं इसके अंदर अगली वीडियो पे कि अगला सिनेरियो हमारी लाइफ में खुल जाता है कि अब पढ़ना है तो डी, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मानेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है, पापा से बात करी, बेटी हूँ तो मैंने तेरे को दिल्ली भेजना ही, दिल्ली की लाइफ होती ही गंदी है, दिल्ली की लाइफ इतनी फास्ट है, तू कोप अप नहीं कर पाएगी, तेरे से कुछ होगा नहीं, क्यों पढ़ना है डी में, क्या अलग है, लेकिन मैंने भेजना ही नहीं, तू रह ही नहीं पाएगी, मैं तेरे को अपने से दूर नहीं भेजूंगा, ऐसे नहीं होगा। लोग यहाँ रहकर, एक सबसे टिपिकल डायलॉग, कुछ बच्चे यहाँ रहकर भी तो पढ़ते हैं ना, वो तू अलग तो नहीं है ना, तू भी यहीं रहकर पढ़ ले। बट आई वॉज द वन हू सेड मैं अलग ही हूँ और मैं अलग बनकर दिखाऊंगी। तो पेरेंट्स का प्रेशर, वो प्रेशर भी नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, इट इज़ नॉट अ प्रेशर, इट इज़ देयर माइंडसेट ऑफ थिंकिंग टूवर्ड्स योर लाइफ। कोई भी पेरेंट आपकी लाइफ में ये नहीं चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना बनो या आप जो करना चाहते हो वो ना करो, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ थी कि यार पापा रिग्रेट रह जाएगा, मुझे अपनी लाइफ में ना रिग्रेट्स नहीं रखने। आपके लिए भी एक टिप है कि अपनी लाइफ में कभी भी रिग्रेट्स मत रखना, कि आप आज से 20 साल बाद कहीं पे बैठे हो एंड यू से कि यार अभी मेरे पास तब ये चीज़ होती ना तो मेरा मन था डी में पढ़ने का, मेरा सपना था डी में पढ़ने का और मैं पढ़ नहीं पाया, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। हो सकता है डी में जाकर भी आप वहीं बैठे होते, लेकिन आपके मन में एक रिग्रेट का बोझ ना रहे कि मैं चाहता था ये करना, मैं डी की लाइफ देखना चाहता था लेकिन मैं नहीं देख पाया। सो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स के मन में भी थी, दे नेवर वांटेड मी कि मैं सैक्रिफाइस करूं। वो नहीं चाहते थे कि रिसोर्सेज भी थे, टचवुड सब कुछ था, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो द बेसिक थिंग इज़ कि पेरेंट की जो थिंकिंग होती है वो भी एक लेवल तक सही होती है। धीरे धीरे सीयूईटी का टाइम आने लग जाता है, पूरा टाइम फोकस होता है सिर्फ बोर्ड के पेपरों पे। मेरे कोचिंग टीचर्स ऑलवेज सेड कि करना है बोर्ड्स पे पहले फोकस करो, उसके बाद हम बीच में 1 मंथ का गैप था एंड देन वाज द सीयूईटी एग्जाम। तो 1 मंथ हमारे पास सिर्फ मिला था सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलते हैं आगे, एक पॉइंट पे आकर अब देखो है तो स्टूडेंट माइंड, सो इट वॉज अबाउट द प्रेशर। सो कमिंग टूवर्ड्स प्रेशर, जब मैं प्रेशर की बात करती हूँ तो डीयू में हर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स, देखो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, हर चीज़ आपको डाटा जो इंटरनेट में मिल जाता है। मैंने बहुत रिसर्च करी थी तो मुझे यही पता लगा था कि बीकॉम ऑनर्स में सीट्स कम हैं, बहुत कम सीट्स हैं। जितनी ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स की डिमांड है उतनी ही कम सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोचिंग टीचर्स भी कहते हैं कि आपको आउटशाइन करना पड़ेगा अगर डीयू में जाना है, अलग परफॉर्म करना पड़ेगा अगर डीयू में जाना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आ जाती है बात सेल्फ डाउट की। सेल्फ डाउट एंड प्रेशर आर 2 थिंग्स दैट मूव कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मेरे को इतना अपने आप पे सेल्फ डाउट हो जाता है, आज भी हो जाता है, मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाऊंगी, अगर ना हुई तो, अगर ये ना हुआ तो। आई फील दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवन। ये ना हुआ तो क्या करूँगी, ये ना हुआ तो क्या करूँगी। तो एक माइंड में प्रेशर बनना क्रिएट हो जाता, शुरू हो जाता है कि अगर डीयू में एडमिशन ना हुआ तो मैं क्या करूँगी। अगर डीयू में एडमिशन ना हुआ, मेरे पेरेंट्स बहुत चिल खुशी से कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेना, साथ में सीए कर लेना, लाइफ सॉर्टेड है, पहुँच तो जाएगी कहीं ना कहीं पे, सक्सेसफुल तो हर कोई हो जाता है। ये चीज़ याद रखना, अगर आप यहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो, आप कनाडा में हो, आप अमेरिका में, सक्सेसफुल हर किसी ने हो जाना है। बिहार में एक गांव का बच्चा भी अगर पढ़कर आईपीएस बन के सक्सेसफुल हो सकता है, तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। इट्स जस्ट दैट इज़ द पॉइंट एट हियर। आपके माइंड की बात है, आप इस चीज़ को कैसे परसीव करते हो और क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो मन में आ जाता है कि अब ना सीयूईटी का एग्जाम हो गया था, बीच में कुछ नीट स्कैम की चीज़ें आने लग गई, रिजल्ट एनटीए नहीं, नीट का भी निकालना था, एनटीए नहीं सीयूईटी का निकालना था। इतना लेट शुरू हो गया कि जो लोकल कॉलेजेस थे, दोज लोकल कॉलेजेस स्टार्टेड देयर करिकुलम, स्टार्टेड देयर प्रोफेशनल डिग्रीज।
2 कॉलेजेस में एडमिशन हो जाती है, एसडी कॉलेज में एडमिशन होने वाली होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा CUET का रिजल्ट। CUET का जब रिजल्ट आया, अब आया तो सिर्फ एग्रीगेट स्कोर है, एग्रीगेट स्कोर से तो पता चलेगा नहीं कॉलेज आना है कि नहीं। उसके भी थोड़े दिन के बाद आपकी फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट लगी। तो कमिंग टूवर्ड्स कि आपकी जब एडमिशन हो गई, इतना मेरा स्कोर आ गया, लेकिन तब भी हम रिलाई नहीं कर सकते थे कि DU में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं। दैट इज़ अ वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट ओवर हेयर कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले तभी DU जाने का फ़ायदा है। आपको हर एक कॉलेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर कोई, क्योंकि DU में इवनिंग कॉलेजेस भी होते हैं, DU में मॉर्निंग कॉलेजेस, रेगुलर कॉलेजेस भी होते हैं, उसके अंदर NC वेब भी होता है, उसके अंदर SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे भी होते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलती, वो सिर्फ 2 दिन के लिए कॉलेज आते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं DU में, जिसके बाद मैं टेल यू। तो हम आ जाते हैं कि स्कोर मिल गया, लेकिन पता नहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। माई स्कोर हुआ 672 आउट ऑफ 800। मेरे को सबने बोला था 650 से ऊपर स्कोर आ जाएगा तो अच्छा है, तो आई वाज लाइक कि आ तो गया है, बट अभी पता नहीं है मिलेगा कि नहीं। सीट्स इतनी लाखों में लोगों ने पेपर दिया CUET के, हर कोई DU का ट्राई करे और DU में सीट सिर्फ 10,000। तो स्कोर आ गया है, अब वेट हो रही है फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट की। फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट के बाद क्या क्या हुआ वो चीज़ आपको पता लगेगी मैंने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। आई होप आप मेरी अपनी जितनी भी जर्नी बताई DU की, जितना मैंने अपना पागलपन आपको दिखाया, आपको पसंद आया होगा। एंड यू कैन, आई थिंक कुछ लोग जो है वो रिलेट कर पा रहे होंगे एंड कुछ लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो रहे होंगे बीच में। तो थोड़ी लंबी वीडियो भी हो जाएगी बिकॉज इट्स लाइक माई जर्नी एंड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, हर चीज़ DU की बिट बाय बिट डिटेल आपको देने की कोशिश की है, तभी थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है कि क्यों DU में ऐसा क्या है, वो भी हम अगली वीडियो में और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। So till then, stay tuned. Bye guys. Wait for part 2. Part 2 will be out very soon. Bye guys. Till then, thank you so much for watching this video. I've been on my spaceship counting stars.